हाय फ्रेंड्स। सो चूँकि आप लोग एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, मे बी आफ्टर 2 months एज सुन एज दिस pandemic will over, and the exams are actually they are lined up and they are in a queue. As soon as this will over, they will be in a continuous basis, right? So अभी हम लोग को क्या करना है, as I got many requests for GS, so individually I cannot teach anyone, and आई गॉट सम टाइम इन अ डे। तो मैं सोचा इस टाइम के लिए मैं आप लोगों को पढ़ा भी दूँ, सो दैट आप लोग भी इस टाइम का अच्छे से यूज़ कर लीजिए, ठीक है। सो सी मेनली व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस हियर इज़ आई एम गोइंग टू फोकस हियर यूपीएससी, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एफकेट, एसएसबी। आई विल टेल यू फॉर विच आई एम स्टार्टिंग एंड नेक्स्ट क्लासेस के लिए मैं क्या क्या स्टार्ट करूँगा। एंड सी दे आर इन अ सिक्वेंशियल मैनर एक्चुअली, और मैं आपको इसी बेस से पढ़ाऊँगा भी। So starting from UPSC, I'm going to take all the points from the UPSC perspective. See, if you aim high, then definitely you can crack the lower one, right? So keeping that perspective in my mind, so if I go through UPSC, see there are broad syllabus. There is absolutely broad syllabus for UPSC, and अगर आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, definitely you are very keen interested towards many exams, and UPSC one of the is considered actually one of the most toughest exam, right? And this Union Public Service Commission exam, that syllabus is divided into 3 categories mainly. They are prelims, interview, and actually mains, which comes in between them. The preliminary syllabus is mainly designed to assess the candidates comprehension of current affairs and aptitudes within the stipulated time, isn't it? So the preliminary exam or paper, you can say, is compulsory, and it's qualifying, right? And the main syllabus is basically designed to judge the candidate's academic expertise in his or her specialized subject. For example, if you take electrical engineering, the questions of the the optional will be for your electrical engineering as well. The syllabus also focuses on testing aspirant ability to the present knowledge in a clear and that we could say in a coherent manner, right? So mainly there are 9 papers, right? And that there are actually 9 papers and syllabus designed according to the subject specified, right? So if I talk about, friends, that prelims one, if I talk about prelims one, there are many 2 papers, right? Paper 1 and paper 2, right? So in paper 1 there are 100 questions, and in paper 2 there are many 80 questions. Both will carry for 200 marks, right? The total will be that 400 marks, right? And after that you will go through mains exam if you clear the prelims one. And in mains exam, paper 1, paper we call paper A, paper B, both are qualifying, right? And paper 1 is an essay, paper 2 is general study GS1, paper 3 GS2, paper 4 GS3, paper 5 is GS4. Then comes your main exam, that is the optional one, which is choose, that is of 250 marks, 250 marks, paper 6 and paper 7, right? So all in one, if I count, it goes near around 1750. And then comes your prelim. After that mains exam, you will face the interview, that's a personality test, you say. It's about 275, right? So grand total will be about 2025, right? So it's like 2025. So okay, so इस चीज़ हम बाद में भी आपको बता सकते हैं. लेट्स गो टू द टॉपिक नाउ. सी शुरू तो आप किसी से भी एग्ज़ाम से भी कर सकते हो. व्हाट आई चूज इज़ लाइक आई चूज ज्योग्राफी फर्स्ट, राइट? सो विल मूविंग टुवर्ड्स ज्योग्राफी. ये नोट्स देखिए आप बहुत ही प्रिसाइज हैं. मैं कहूँगा कि जैसे आपके 20 पन्ने की अगर कोई एक चैप्टर होता है, तो मैंने इसको सिर्फ 2 पन्नों में ही कवर करवाया है, सो दैट ये आपके लिए क्विक रिविजन का भी काम करेगा, राइट? सो मैंने जो पहला चैप्टर चूज़ किया आपके पढ़ने के लिए, वो है आपका अर्थ एंड इट्स इंटीरियर, राइट? सी अगर मैं उसकी बात करूं, तो पहला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है आपका कोऑर्डिनेट, राइट? सो कोऑर्डिनेट में आपका जो है 2 चीज़ें हैं. एक आपका लैटिट्यूड है और एक आपका होता है लॉन्गिट्यूड, राइट?
सो इसमें देखिए है क्या मेनली सी, अगर मैं बात करूँ पैरेलल सब लैटिट्यूड की, सो इसमें दो चीज़ें होंगी। पहली बात लैटिट्यूड आप देखेंगे और लॉन्गिट्यूड देखेंगे। देखिए लैटिट्यूड में क्या होता है आपका नॉर्थन साउथ पोजीशन हम डिफाइन करते हैं, जबकि मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड में हम क्या करते हैं ईस्ट और वेस्ट पोजीशन डिफाइन करते हैं। सी हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज ही करते हैं, चाहे मैं मैथ्स की बात करूँ या फिजिक्स की बात करूँ, किसी चीज़ को लोकेट करने के लिए, राइट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर सिटिंग इन अ क्लास इन अ स्कूल, सो वी से कि मैं फॉर एग्जांपल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ता हूँ एंड मैं क्लास 5th A में आप एंटर करेंगे तो मैं सेकेंड रो में 3rd कॉलम में बैठता हूँ। तो डेफिनेटली आप अगर ऐसे किसी को बताएंगे तो ही विल रीच टू योर क्लास एंड ही कैन लोकेट you there. So if I talk about parallels of latitude, it is angular measurement system that specify the north and south position, right? North and south position, ठीक है, of the object at the earth surface, ठीक है. It ranges from 0 at the equator and to the 90 degree at the pole. दोनों की बात करूँ मैं, देखिए बीच में इक्वेटर होता है जो 0 90, right? So okay, so difference between two neighboring latitude is always same but obvious, right? So मैं second की बात करूँ longitude, right? So it is a measurement system that define the east west position of an object on the earth surface. जैसा उस नॉर्थ साउथ था, मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड जो होता है वो आपका ईस्ट और वेस्ट में काम करता है. These are the semicircles and the distance between them decrease steadily. डेफिनेटली आप जब है ड्रॉ करेंगे, आप देखेंगे अर्थ को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जाने के बाद इसकी डिस्टेंस कम होती जाती है, राइट. ओके, सो यू नो दैट प्राइम मेरिडियन की मैं बात करूँगा. देखिए उससे पहले पॉइंट नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं. दीज आर द सेमी सर्कल एंड डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीज स्टेडीली देन पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स 0 एट द पोल. ऑल मेरिडियंस मेट एट द पोल, राइट. हमेशा आप ध्यान रखिएगा लैटिट्यूड जो होती है लेटिव लाइन होती है, लॉन्गिट्यूड जो होती है दैट्स अ वर्टिकल, राइट. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट प्राइम मेरिडियन, राइट. सो प्राइम मेरिडियन आपको पता ही है, इट्स वी कॉल इट 0 डिग्री. और हम बोलते हैं कि प्राइम मेरिडियन जो होता है इट पासेस थ्रू ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, जो कि लगभग आपका ये लंदन के नियर पे होता है, राइट. सो 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इक्वल टू 4 मिनट, राइट. इसीलिए इसी के साथ साथ कैलकुलेशन ये हम करते हैं, राइट, मल्टीप्लाई करके. सो मैं बात करूँ इंटरनेशनल डेट लाइन की. सो देखिए इंटरनेशनल डेट लाइन की मैं बात करूँगा. इट इज़ एन इमेजिनरी नॉन लीनियर लाइन दैट सर्व एज अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर डेट. कभी भी आप जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री विजिट करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि आप टाइम यहाँ पर दिन हो रहा है, आप 2 घंटे क्रॉस करते हैं, 3 घंटे क्रॉस करते हैं, इवनिंग हो जाती है, राइट. सो इट मेनली बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है. मैं आपको इंटरनेशनल डेट लाइन की आपकी बात करूँ मैं, ठीक है, डेफिनेटली. सो व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू हियर इज लाइक सी दिस लाइन, राइट. दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ डिमार्केशन, राइट. ओके, सो ये एक वर्ड मैप है एंड डेफिनेटली यू कैन लोकेट. सी ये हमारा प्यारा भारत, राइट. एंड इधर से आप बात करेंगे, मैं अगर आपकी बात करूँगा, सी दिस इज़ लंदन जिसकी हम बात कर रहे थे आपसे अभी, राइट. सो या हाँ, सो इट पासेस थ्रू अ मिड पैसिफिक ओशन, जो मैंने आपको अभी दिखाया लोकेशन पे, ठीक है. अ डे इज़ गेन, एक देखिए ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. अ डे इज़ गेन व्हेन इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस्ड फ्रॉम west to east, right. And a day is lost when crossed from east to west, right. Perfect. Okay, let's move to next topic, right. We talk about 4th topic, that is इक्विनॉक्स, राइट. सी इक्विनॉक्स में हम करते क्या हैं, मेनली जो है आपका इक्विनॉक्स होता है, इट इज़ एन इंस्टेंट एट टाइम व्हेन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट्स आर
इक्वल, राइट। ये देखिए इस फिगर से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसमें इक्विनॉक्स के बारे में। इक्विनॉक्स में क्या होता है मेनली कि आपके जो डे एंड नाइट होते हैं दैट बिकम्स इक्वल। इट्स पोजीशन एक्चुअली, ये अर्थ एक ऐसी पोजीशन होता है जिसमें जो डे और नाइट के जो ड्यूरेशंस होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। दिस ऑकर ट्वाइस अ ईयर एंड अराउंड लाइक स्पेसिफिकली 20 मार्च एंड 23 सितंबर को। डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल एट द इक्वेटर। इस केस में जो होता है इक्वेटर पर डायरेक्ट सन रेज फॉल करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, राइट। ओके, सो आपकी फिगर आपको मिलेगा एनसीईआरटी में है, आप जब देखेंगे एनसीईआरटी में, राइट। ये फिगर एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। ओके, सो मैं अगर आपसे सेकंड टॉपिक की बात करूं जो होता है अर्थ इंटीरियर। देखिए हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि भाई साहब अर्थ इंटीरियर में क्या होता है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। बहुत बेसिक, क्लास 8 में भी लिखा हुआ है क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट सी व्हेन यू फेस सच एग्ज़ाम आपको इसके बियॉन्ड भी जाना पड़ता है, राइट। सो इसमें होता क्या है, पहले अर्थ इंटीरियर की बात कर लेता हूँ मैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ हैव 3 लेयर, दैट इज़ क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, राइट। सो अगर मैं क्रस्ट की स्पेसिफिकली बात करूँगा, ठीक है, क्रस्ट की मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँगा, देखिए जैसा कि हम सभी जानते हैं इट इज़ द अपर मोस्ट सॉलिड एंड ब्रिटल ऑफ द अर्थ, राइट। सो देखिए इसमें भी आप जब एक प्रोस्पेक्टिव जाते हैं यूपीएससी प्रोस्पेक्टिव से या फिर कंपटीशन एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, नई नई टर्म्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल सी दिस इज़ लाइक ओशनिक क्रस्ट, जो आपका 5 किलोमीटर तक पाया जाता है ओशंस में, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट इज़ लाइक थिनर एंड डेंसर कंपेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट। जो हम ज़मीन में पाते हैं डेट कॉल्स अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जो ओशन में होता है डेट्स कॉल्ड अ ओशन क्रस्ट, राइट। अभी बहुत सारी चीज़ें रहेंगी जो आप पढ़ेंगे इसमें। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। ये कई बार क्वेश्चन आया भी है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यू नो दैट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। सो इसको कंफ्यूज मत होइएगा आप, ओशनिक क्रस्ट है, राइट। जैसे ओशनिक क्रस्ट में क्या होता है आपका बेसाल्टिक रॉक होता है, राइट। लेकिन आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में आपका सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम होता है, राइट। गुड, ओके। सो सी अभी आप जो हैं बहुत सारी डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी सुनेंगे इस सिलेबस में। डिसकंटिन्यूटी क्या होता है कि कोई ना कोई चेंजेस, फिजिकल चेंजेस आप महसूस करेंगे व्हेन गोइंग फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, राइट। फॉर एग्जांपल हम पहली डिसकंटिन्यूटी की बात करें, कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी, राइट। सो कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, इट सेपरेट द अपर क्रस्ट फ्रॉम द लोअर क्रस्ट। ये सिर्फ क्रस्ट की मामले में हम बात करेंगे। अगर मैं क्रस्ट की लेयर ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, तो इसमें क्या होता है, इट सेपरेट द अपर क्रस्ट फ्रॉम द लोअर क्रस्ट, राइट। ओके, सो ये क्या होता है, ये जो बीच में जो मैंने बताया था ये कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी होता है, ठीक है। अब आपको देखिए सेकंड में क्या है कि अब हम मेंटल की बात करते हैं। मेंटल में क्या होता है, इट एक्सटेंड फ्रॉम महो डिसकंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। दिस डिसकंटिन्यूटी सेपरेट द क्रस्ट एंड द मेंटल, ठीक है। अब देखिए ऊपर जो कॉन्ड्रेट है वो 2 क्रस्ट की बात कर रहा है वो, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट, कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करने वाले वो हम बोलेंगे महो डिसकंटिन्यूटी। देखिए क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत सारे, ध्यान रखिएगा। 2 क्रस्ट को, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट को कॉन्ड्रेट डिसकंटिन्यूटी एंड एक क्रस्ट को मेंटल से महो डिसकंटिन्यूटी, राइट। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका एस्थेनोस्फेयर, राइट। सो सी इट्स लाइक इट्स अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल एक्सटेंड अप टू 400 किलोमीटर्स। सी किलोमीटर्स जो ये सब चीज़ें हैं ये आपके लिखने के समय काम आते हैं, बट टू वेरी स्पेसिफिक बहुत सारे क्वेश्चन इसमें नहीं बनते हैं, बट आप अपने नॉलेज के इसको यू कैन रिमेंबर इट, राइट। So it is highly viscous, ductile and weak layer, right, over which lithosphere moves। आपको पता ही होगा, देखिए आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, लिथोस्फेयर, सेट्रोस्फेयर, मिजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पर लिथोस्फेयर की बात किया जा रहा है। ओके, सो हम बात करेंगे लिथोस्फेयर के बाद। सो सी लिथोस्फेयर में क्या है, क्रस्ट एंड अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। सी नॉर्मली वी कॉल इट द अपर मोस्ट पार्ट, राइट। सो ओके, सो इसका रेंज भी है 10 से 100 किलोमीटर पे, ठीक है। इट इज सब डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स, ओके। एंड जब आप लिथोस्फेयर की बात करेंगे वो टेक्टोनिक प्लेट्स में ब्रेक होते हैं,
उसका जो डिवीज़न होता है सब पार्ट्स हम कह सकते हैं। द डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल, अब इसको ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। कॉन्ड्रॉइड डिसकॉन्टिन्यूटी, महो डिसकॉन्टिन्यूटी। कॉन्ड्रॉइड क्या है? अपर क्रस्ट को लोअर क्रस्ट से, महो क्या है? क्रस्ट और मेंटल को। अब देखिए हम टू मेंटल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। सो द डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन द अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल इज कॉल्ड रेपिटेड डिसकॉन्टिन्यूटी, राइट। अब मेसोस्फेयर की बात करते हैं हम। इट इज़ अ पोर्शन ऑफ द मेंटल विच इज़ जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर बट अबव द कोर। मेसोस्फेयर आप समझ गए होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मेनली इट्स अ पोर्शन ऑफ द मेंटल विच इज़ जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर बट अबव द कोर। कोर से ऊपर होता है ये, ठीक है। सो मैं बात करूँ अगर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट की ऑफ द मेंटल, तो मेनली वो जो होते हैं दैट्स मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन, राइट। चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं कोर पर। देखिए अभी हमने बचपन क्लासेस में जितने भी बचपन में पढ़े थे वो सीने क्रस्ट, मेंटल एंड कोर पढ़ के छोड़ दिया, तब हम क्या जा रहे हैं उसके डीप में जा रहे हैं, राइट। सो या देखिए कोर की हम बात करेंगे। सो द कोर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय अ गटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी कई बार पूछा गया है। द कोर इज सेपरेटेड फ्रॉम मेंटल बाय गटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। मेंटल और कोर के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है दैट इज़ अ दैट सी डिसकॉन्टिन्यूटी हमेशा आप याद रखिएगा, दो चीज़ों के बीच में जो एक सेपरेशन लेयर होती है दैट्स डिसकॉन्टिन्यूटी, राइट। okay, so like it is a densest layer of the earth and consists of the two sublayer that is inner core which is very solid। अभी आप देखेंगे जो हम रे पास करते हैं उस रे पास करने में जो डेविएशंस होता है वो आपको पता चल जाएगा, चेकिंग के समय काम आता है वो। and the inner core is like that solid state but the outer core is a liquid state, right? okay, and see the discontinuity between the upper कोर एंड द लोअर कोर, आप इसको आप जो है मुझे बताएंगे कि क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। आपने शायद अगर पढ़ा नहीं होगा तो आप मुझसे इस बारे में पूछेंगे, डेफिनेटली आई कैन टेल यू, लेकिन कहीं ना कहीं आप याद करिएगा कि ये चीज़ क्लास एनसीईआरटी क्लास 9 की बुक में भी आपको मिलेगी ये चीज़, बट ठीक है आई कैन टेल यू दैट सी इट्स अ लेमैन डिसकॉन्टिन्यूटी, राइट। या सो अब जो जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसे हम बोलते हैं कि इसी ये जो फिगर आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कर देगा कि कैसे कैसे हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। तो ये जो इमेज है ये शोधगंगा से ली गई है। आप देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर बहुत सारे आपको जो लेयर्स के बीच में वेरिएशन आप बीच में लेयर आपको दिख रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए दो मेंटल आउटर कोर, ठीक है, इनर कोर, ठीक है। यहाँ पर रेंज भी आप देख रहे हैं 5100 किलोमीटर ऊपर से आप देखते जाइए, ठीक है। ये क्रस्ट है एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर लेयर जो मेंटल की स्टार्ट हो गई है। सो दिस कैन गिव द होल आइडिया कि भाई सब क्या हो रहा है अर्थ के अंदर पे, ठीक है। सो देखिए इमेज का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि इमेज को अगर आप एक बार देख लेते हैं तो डेफिनेटली जो है आपके लिए काफ़ी काम करेगा बाद में, ठीक है। सो इमेज हमेशा दिमाग में चीज़ों को आप याद करके समझ के रखिए, ठीक है। देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिसेंट स्टडीज़ हैव डिटेक्टेड शेयर वेव्स और जे वेव्स इन द इनर कोर। जो मैं आपको भी बोल रहा था कि टेस्टिंग के समय हम यूज़ करते हैं सॉलिड और लिक्विड वाले को, वो यहाँ पर आपके लिए है। सो अब देखिए हमारे पास क्या है, बहुत लोग परेशान रहते हैं कि भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। तो भाई साहब साइंस के स्टूडेंट्स हैं, अगर हैं नहीं भी हैं तब भी ध्यान रखिए कि अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करिए कि कैसे आता है, क्यों आता है। फ़िलहाल हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, ठीक है। तो देखिए मेनली अर्थक्वेक क्या होता है, इट्स अ रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। इट्स अ रिलीज ऑफ एनर्जी एंड जनरेटेड वेव्स विच ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी आप अर्थक्वेक के बारे में जो कि जाने हैं, मैं आपको बताता हूँ कुछ फैक्ट्स भी। देखिए अर्थक्वेक में बहुत सारे फैक्ट्स भी रहेंगे जो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है। कि मेनली क्या है कि जब हम स्टडी करते हैं तो उसे पाया गया है अर्थक्वेक के बारे में कि जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एक फॉल्ट की जगह पर रिलीज़ होती है। मेनली उसको हम फोकस भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, रिलीज ऑफ एनर्जी ऑकर्स अलोंग द फॉल्ट, द पॉइंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड फोकस, ठीक है। द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द फोकस ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एपिसेंटर। जहाँ हम लोग बोलते हैं कभी कभी ना कि साहब दिल्ली जो है ये अर्थक्वेक का एपिसेंटर है, या फिर कभी कभी
उसके आसपास का हरियाणा गुड़गांव की बात करते हैं कि एपी सेंटर है यहाँ का। सो एपी सेंटर मेनली द ओरिजिन प्लेस, राइट, ठीक है। एंड अर्थक्वेक वेव्स की अब बात करते हैं। अर्थक्वेक वेव्स कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, दैट्स अ वेरी मेन टॉपिक राइट नाउ। सो सी सिस्मिक वेव्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज बॉडी वेव एंड अ सरफेस वेव, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये ग्राफ है, काफ़ी क्लियर कर देगा आपको। यहाँ पर अर्थक्वेक के दो, सरफेस वेव एंड बॉडी वेव, ठीक है। अब बॉडी वेव के भी दो पार्ट होते हैं, हम बोलते हैं पी वेव एंड एस वेव, इसको प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव, राइट। ये चीज़ें बहुत यूज़फुल रहेंगे आपके आंसर राइटिंग में। सी ग्राफ आप याद कर जाएंगे। नॉर्मली देखिए अर्थक्वेक वेव दो वेव, सरफेस एंड बॉडी, ठीक है। बॉडी में क्या है आपका, ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, राइट। अब देखिए आपके जो टॉपिक आ रहे हैं वो थोड़े से लेंदी आ रहे हैं एंड डिफ़िकल्ट भी हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए आप बात कर रहे हैं हम अब शेडो वेव्स की या शेडो जोन की हम बात करते हैं, ठीक है। शेडो जोन क्या होता है, आप इमेज देखिए पहले, इमेज में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा शेडो वेव क्या होता है। क्योंकि देखिए इमेज समझाना मेरा मतलब ये है, क्योंकि इमेज अगर आपके सामने रहेगा तो चीज़ें आपको काफ़ी क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जहाँ की उस वेव को अगर हम पास करते हैं तो वहाँ वो रिपोर्ट नहीं करते, मतलब हम उसको वहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दिस एरिया जो होते हैं, दिस एरिया रिवर्स द डेंसिटी ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर एंड स्टेट ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मेनली इन्हीं वेव के ज़रिए जो है हम अर्थ के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, अगर वेव पास कर रही हैं तो क्या स्ट्रक्चर है, वेव नहीं पास कर रही हैं तो क्या है ऐसा जो हिंड्रेंस डाल रहा है। सो मेनली वी यूज़ दिस, राइट। ये देखिए ये जो आपका इमेज है ये एक ब्रिटिश जियोलॉजी सर्वे से लिया गया है। देखिए ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बिकॉज ये आपके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सी यहाँ पे क्या ये शेडो जोन है, ये शेडो जोन है, मतलब यहाँ पे पी वेव नहीं पास करेंगी, राइट। देखिए ये एपिसेंटर है जिसको हम बोल रहे थे, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ से पी वेव एंड एस वेव दोनों पास कर रही हैं, प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव, ठीक है। अब क्या है देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पी वेव जो है नहीं पास की, ठीक है, नो डायरेक्ट पी वेव, ठीक है। यहाँ पर की ये मेंटल इस जगह भी सेम चीज़, यहाँ पर पी वेव नहीं पास की है, राइट। सो इसमें क्या है, मेनली ये आपके अर्थ के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं कि अगर पी वेव नहीं पास की है तो क्या स्ट्रक्चर है, सॉलिड से पास की है या लिक्विड से पास की है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ डिफाइन हो जाएंगी, राइट। ओके, सो देखिए अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है आपका अर्थक्वेक को हम मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए सबसे जो तरीका हम यूज़ किया जाता है वो आपको दो चीज़ें होती हैं। एक तो हम बोलते हैं रिक्टर स्केल, दो बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि रिक्टर स्केल और जो मेर्कली स्केल होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए जो हम मैग्नीट्यूड जो है अर्थ का मेज़र करते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, रिक्टर स्केल, राइट, जो कि 1 से लेकर 10 तक होता है। लेकिन जो मेर्कली स्केल होती है वो इंटेंसिटी मेजर करती है। दोनों में डिफरेंस समझिए, रिक्टर मैग्नीट्यूड, मेर्कली जो है आपका इंटेंसिटी, ठीक है। दैट्स एक्चुअली यू नो दैट विजिबल डैमेज, क्या इंटेंसिटी का अर्थक्वेक था, कितना डैमेज हुआ है, वी से लाइक दिस, ओके या। सो देखिए अब हम आते हैं टाइप ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। देखिए हर चीज़ का कुछ ना कुछ कारण होता है होने का। देखिए टाइप ऑफ अर्थक्वेक के हम यही बात करेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या है। फॉर एग्जांपल का मैं कॉज की बात करूँगा, कॉज बाय नेचुरल फैक्टर, उसमें भी आपके दो टाइप के मिलेंगे, एक टेक्टोनिक अर्थक्वेक, एक वॉल्केनिक वॉल्केनिक बट डिफाइन है। टेक्टोनिक जो होंगी टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण होंगी, वॉल्केनिक जो होगा वॉल्केनिक इरप्शन के कारण होगा, ठीक है। और अगर मैं दूसरे की बात करूँ, फॉर एग्जांपल दिस कॉज बाय एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल रिजर्वायर यूज, इंड्यूस अर्थक्वेक, ठीक है, कोलैप्स अर्थक्वेक ड्यू टू इंटेंस माइनिंग, जब ज़्यादा आप खुदाई वगैरह कर देते हैं तो, ठीक है। एक्सप्लोसिव, दैट्स एक्सप्लोजन अर्थक्वेक ड्यू टू द केमिकल एंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, राइट। सो ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं, राइट। अब हम बात करते हैं आपके टाइप्स ऑफ वॉल्केनो की, ठीक है। देखिए अब वॉल्केनो में भी क्या होगा कि वॉल्केनो तो एक बहुत ह्यूज चैप्टर है आपके लिए, लेकिन मैंने यहाँ पर जो है
बहुत ही प्रिसाइज और बहुत शॉर्ट में एक टेबल के फॉर्म में आपको डिफ़ाइन किया है। देखिए यहाँ पर क्या है, टाइप ऑफ वॉल्केनो जो है मेनली आपके कई पैरामीटर्स पर इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, की बात करूँ तो देखिए एक्टिव, डोर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट, ठीक है, ये तीनों स्टेट में रहते हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, मतलब कितने टाइम बाद वो ब्रस्ट करते हैं, ठीक है, दैट्स अ फ्रीक्वेंसी स्टेज। फॉर एग्जांपल एक्टिव, डोर्मेंट और एक्सटिंक्ट, ये उनके नंबर ऑफ दैट वी कॉल इरप्शन, उसके हिसाब से किए जाते हैं। अब बेस्ड ऑन वॉल्केनिक इरप्शन पे क्या हम बोलते हैं, उस पर देखिए क्या है। पहला जो है हम बोलते हैं एक्सप्लोजिव टाइप। देखिए इसमें जो है आपका जो फ्लो होता है बेसॉल्ट का, उस पर भी कभी कभी डिफाइन चीज़ें की जाती हैं, हम करते हैं मेनली। फॉर एग्जांपल देखिए एक्सप्लोजिव में क्या होता है, एक्सप्लोजिव टाइप में मोस्टली मेड ऑफ बेसॉल्ट, ठीक है, मेनली ये जो होता है फ्लोरिन नेचर होता है एंड एक्सप्लोजिव ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, फिशर टाइप है, ठीक है। अब फिशर टाइप में देखिए इसके लिए इससे पहले आपको डायग्राम भी जानने की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज वो जो है आप उसको देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देखिए फिशर टाइप में क्या होगा, दैट फ्लड बेसाल्ट एज कंटिन्यूअस इरप्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये धीरे धीरे बहता रहता है लॉन्ग टाइम में, ठीक है। एक्सप्लोजिव में क्या होता है, तुरंत ऐसे बाहर निकालते हैं सारे मटेरियल्स, लेकिन फिशर टाइप में क्या होगा, धीरे धीरे जो यहाँ पर होल्स होते हैं, इससे धीरे धीरे सारा बेसॉल्ट जो है वो बाहर आता रहेगा इसमें से, ठीक है। ओके, सो अब जो है देखिए इसमें है क्या, मेनली विस्कस नेचर होगा तभी डेफिनेटली फ्लो करेगा वो, लार्जली फाउंड अलोंग द रिफ्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मिड अटलांटिक रिफ्ट की बात कर लीजिए या फिर ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट की बात कर लीजिए, ठीक है। एंड थर्ड टाइप इज़ नॉट वेरी दैट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन, बट स्टिल वी स्टडी लाइक अ हॉट प्लम टाइप। इसमें होता क्या है कि फ्लड बेसॉल्ट एंड विस्कस इन नेचर, इनके टाइप हैं कि वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं। द सोर्स ऑफ द लावा इज़ आउटर कोर में सारा लावा होता है इसका। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ तो डेक्कन ट्रैप एंड हवाई आइलैंड की बात कर सकते हैं हम लोग, दो एग्जांपल्स हैं इसके। अगर मैं बात करूँ आपके बेस्ड ऑन द फॉर्म्स डेवलप, ठीक है, तो इसमें जो है हम किस फॉर्म में डेवलप होते हैं उस पर डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल सील्ड वॉल्केनो, ये एक्सप्लोजिव होते हैं, एक्सप्लोजिव टाइप इरप्शन क्रिएट वॉल्केनिक कोन्स, राइट। कंपोजिट की बात करें तो मेनली मिक्स्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल मोस्टली विस्कस फ्लो एंड स्टेप बाय फॉर्म स्टीप वॉल्केनिक माउंटेन। अगर मैं कैल्ड्रा की बात करूं सो देखिए उसमें ये एक लार्ज ओपनिंग होता है यहाँ पर, ठीक है, मोस्ट एक्सप्लोजिव, ठीक है, एंड कोलैप्स द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे जो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स होता है, ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट की बात करते हैं, इट्स लाइक फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस इज दैट्स अ फिशर और हॉट प्लम टाइप इरप्शन ऑन अ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मिड ओशनिक रिज की बात करें, दिस आई लाइक फिशर टाइप इरप्शन ऑन अ ओशनिक क्रस्ट, ओके। तो देखिए वॉल्केनो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको कुछ छोड़ के नहीं जाना है, बिकॉज बहुत सी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं वॉल्केनो में, ठीक है। सो अब देखिए हम बात करते हैं आपका मेनली थ्योरीज़, क्या थ्योरी एसोसिएटेड होती हैं। देखिए थ्योरीज़ एक्चुअली जो होती हैं वो प्रीलिम्स में तो बहुत कम देखी गई हैं, बट मेंस की एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती हैं आपके लिए, ठीक है। सो थ्योरीज़ आर इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन अंडरस्टैंड द थ्योरीज़ एज वेल। तो मैं आपकी पहली बात करूँगा, ठीक है, ये आपको जो होती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, बहुत फेमस थ्योरी है जिसको दिया है अल्फ्रेड वॉगनर ने, ठीक है। देखिए इस थ्योरी में क्या है कि एक्चुअली फॉर्मेशन थ्योरी कहते हैं इसको मेनली। उसमें कहता क्या है कि पूरा जो कॉन्टिनेंट है वो एक सिंगल कॉन्टिनेंट से बना हुआ है, दैट्स कॉल्ड अ पेंजिया, ठीक है। अब इसमें भी आप देखेंगे कि विच लेटर स्प्लिट इनटू टू पार्ट, दैट इज लॉरेशिया एंड गोंडवाना, ठीक है। सो ये जो थ्योरी होगी मेनली एक स्प्लिटिंग थ्योरी होती है जिसमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसको लॉरेशिया बोलते हैं जो आपका नॉर्थ में चला गया, ठीक है, और गोंडवाना जो चला यहाँ पर साउथ में आ गया आपके लिए, ठीक है। द मेगा ओशन इज कॉल्ड पैंथलिस, यहाँ पर ओशन जो था यहाँ पर पैंथलिस को बोलते हैं, मेगा ओशन बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है ऐसे पैंथलास वाला जो आप क्वेश्चन है आपका। सो अलग अलग लोग दैट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि वो कौन से क्वेश्चन आपके पूछते हैं, राइट।
तो 10th क्लास में कई बार क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं, गोंडवाना लॉरेशिया से क्वेश्चंस तो मेनली नहीं आते हैं बिकॉज दे आर लाइक वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन। सो अगर मैं एविडेंसेस की बात करूँ, देखिए एविडेंसेस भी कई बार पूछे जाते हैं कि आप लोगों को पता कैसे चला कि पूरा जो है अर्थ एक था, कॉन्टिनेंट सब मिले हुए थे आपस में, ठीक है। तो कि पहला क्या था, मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट। अगर आप देखेंगे कि साउथ अमेरिका की बात करूं मैं और अफ्रीका की बात करूं मैं, तो देखिए ये जो है आपस में एक मैचिंग कॉन्टिनेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। इनका जब देखेंगे जिगजैग मोशन, दे आर मेनली अ मैचिंग कॉन्टिनेंट। मैं आपको अगर दिखाऊंगा, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब उनके फॉर्मेशन को चेक करेंगे, कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि वो दोनों जो हैं आपस में मिले हुए हैं कहीं ना कहीं, राइट। सी पहले कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि देवर पार्ट। ये देखिए सी, अगर आप इन दोनों की बात करें, ये दोनों जब आपस में मिलाएंगे आप, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे दोनों से फिट बैठ जाते हैं। ये देखिए, दिस इज़ साउथ अमेरिका, ठीक है। अब ये जो है आपका यहाँ पर ये अफ्रीका। अब देखिए ये दोनों आपस में जब आप मिलाएंगे दोनों कॉन्टिनेंट्स को, तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दूसरे के अंदर ईजिली फिट हो जाएंगे। तो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द थ्योरी जो ये बोलते हैं कि पहले सब कुछ एक था, ठीक है। ओके, सो हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ठीक है। बहुत सारे एविडेंसेस थे। फॉर एग्जांपल ये देखिए सेकंड की बात करते हैं, रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन। दोनों ही ओशन के बात कर अलग अलग जो पार्ट्स थे उसमें जो रॉक के थे उनके सेम एज थे। फॉर एग्जांपल अगर बात करूँ यूएसए की बात करूँ, ठीक है, एंड सेम चीज़ अगर स्कॉटलैंड की बात करूँ तो सेम एज, लाइक दे आर फिट टुगेदर, ठीक है। तो दीज आर द एविडेंसेस फॉर इंस्टेंट, हम जिसमें हमेशा ही बात करते हैं कि ये प्रूफ है कि पहले सब कुछ एक था, ठीक है। और टिलाइट की बात करूँ, लाइक सॉडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द ग्लेशियर डिपोजिट एंड फाउंड इन इंडिया एंड 5 अदर लैंड मासेज ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर, राइट। ये सारे एविडेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन अंडरस्टैंड सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते थे वो काफ़ी ज़्यादा जो है 5 लैंड मासेज से मैच किए जो सदर्न हेमिस्फेयर में है, जो हमें इंडिया में मिला। सो प्लेसर डिपॉजिट की बात करें, फॉर एग्जांपल आप अगर गोल्ड डिपॉजिट की बात करते हैं जो घाना में है, ठीक है, घाना कोस्ट पर, और बट पेरेंट रॉक जिसका आप फाइंड करेंगे वो ब्राज़ील में मिलेगा। अब दो चीज़ें देखिए अलग अलग हैं, कहाँ गोल्ड आपको घाना मिल रहा है बट उसका पेरेंट रॉक जो है वो ब्राज़ील में है। तो कहीं ना कहीं हम लग रहा है ना कि एक चीज़ एक थी पहले सब कुछ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल की हम बात करें तो फॉसिल लाइक ऑफ द सेम स्पीसीज फाउंड इन अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, दोनों में ही सेम स्पीसीज़ के फॉसिल फाउंड किए जाते हैं। अगर हम बात करें फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्ट, ठीक है। अब देखिए उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल दो चीज़ें हैं। पहली तो आपकी पोल फ्रीसिंग फोर्स बोलते हैं जो कि रोटेशन से आता है अर्थ के, ठीक है। हम ये भी कंसीडर करते हैं कि इसके कारण जो है ड्रिफ्ट हुआ है, मूवमेंट हुआ है। एंड सेकंड हम बात करें टाइडल फोर्स की। टाइडल फोर्स मेनली आपको पता ही है कि ये एक अट्रैक्शन फोर्स होता है मून और सन का, ठीक है। जो टाइड्स हम जनरेट होती हैं यहाँ पर आप ओशन में देखेंगे, ये टाइडल फोर्स के कारण ही होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कन्वेंशनल करंट थ्योरी की। लाइक कन्वेंशनल करंट थ्योरी क्या बोलती है, देखिए इन्होंने क्या है प्रपोज किया गया था अर्थर होम्स के द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या है, मूवमेंट जो होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन आर द फोर्सेज बिहाइंड द ड्रिफ्टिंग ऑफ द क्रस्ट। इनकी अलग ही थ्योरी आ गई। इन्होंने क्या बोला था कि जो मूवमेंट ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं ऑलरेडी मेंटल में हैं, उनके मूवमेंट के कारण जो है आपकी ये चीज़ें हुई हैं, राइट। ये एक फोर्स है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का मूव करना, दिस लाइक अ फोर्स, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरी दी इसमें, ठीक है। सो अब सब बहुत सारी थ्योरीज कंसिडर होती हैं, बहुत सारे थ्योरी के क्रिटिक्स भी होते हैं, बट हम उन पे नहीं जाएंगे, राइट। क्रिटिक्स पर हम नहीं जाएंगे, क्रिटिक्स पर जाएंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा लेक्चर बन जाएगा। जो आपकी थर्ड है वो है आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। इसमें क्या है आपका सी फ्लोर थ्योरी में देखिए ओशन की मैपिंग होती थी। इसमें मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर ऑफ द अर्थ एंड मैनी पैलियोमैग्नेटिक स्टडीज रिवील्स दैट वोल्केनिक इरप्शन अलोंग द मिड ओशनिक रीजेस। अब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी जो थी ये काफ़ी ज़्यादा उस समय लोकप्रिय हुई थी, क्योंकि इसके जो फैक्ट्स थे वो अलग ही दिए गए थे। अब फैक्ट्स देखिए इसके, जैसे फॉर एग्जांपल रॉक्स आर द इक्वी डिस्टेंस ऑन द बोथ साइड ऑफ द रिजेस। अब जब रिजेस की अब बात करते हैं ओशन के अंदर, उनके जो रॉक्स होते हैं दे आर इक्वी डिस्टेंस ऑन बोथ साइड, राइट। और अगर मैं बात करूँ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी की, इट्स वी फाइंड ए रिमार्केबल सिमिलैरिटी सच एज लाइक उन दोनों ही रॉक्स के एज, केमिकल कंपोजिशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब लगभग सेम थे,
लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट हेनरी हेस जो बोला गया था प्रपोज अ सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी विच स्टेट्स constant eruption cause rupture and pushes of the floors apart, राइट। अब देखिए इसमें उन्होंने बोला भी था, एक और चीज़ बोला था, उन्होंने बोला था कि न्यू लावा इरप्ट एंड फॉर्म अ न्यू क्रस्ट, ठीक है, दस स्प्रेड्स अ ओशनिक फ्लोर। अब इन्होंने ये बोला था कि जो नया लावा निकलता है दे फॉर्म अ न्यू क्रस्ट, और इसी न्यू फॉर्मेशन के कारण जो अर्थ ओशन फ्लोर की स्प्रेडिंग हुई थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इन्होंने इसी के बेस पर दिया था, राइट। अब हम चलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर। ये भी ज़्यादा पॉपुलर तो नहीं थी, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग अभी भी इसको ज़्यादा समझते हैं। मेनली अभी जो है आप किसी से पूछेंगे तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के कारण ही लोग बोलते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें लिथोस्फीयर का डिवीज़न बताया गया था। लिथोस्फीयर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लिथोस्फीयर के डिवीज़न से बताया गया था आपको, ठीक है। अब देखिए दो चीज़ें थी, पहली बात तो लिथोस्फीयर के डिवीज़न को कई लोगों ने कई प्रकार से बोले थे। फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी यहाँ की बात करूँ तो उन्होंने बोला था कि लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इन टेक्टोनिक और लिथोस्फीयर प्लेट, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला था कि टेक्टोनिक और लिथोस्फीयर प्लेट्स के बारे में, छोटे छोटे स्प्रेड्स के बारे में, ऐसे ऐसे प्लेट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या है, लिथोस्फीयर इंक्लूड क्रस्ट एंड टॉप मेंटल, आपको ठीक है, आपको पता ही है कि लिथोस्फीयर जो होता है ऊपर का क्रस्ट होता है और मेंटल का टॉप का पोर्शन होता है, ठीक है। और ये सारे प्लेट्स जो होते हैं बहुत कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं ओवर द एस्थेनोस्फीयर, राइट। तो अब इसमें भी है कि इसके 7 मेजर प्लेट्स है, ठीक है, और 10 माइनर प्लेट्स कहे जाते हैं, और छोटे छोटे बहुत माइक्रो प्लेट्स होते हुए हैं। देयर 2 टाइप ऑफ प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशनिक प्लेट्स, राइट। सो देखिए ये जो थ्योरीज बताने का मेरा मतलब ये था, क्योंकि ये थ्योरीज हैं जो पूछे जाते हैं आपके पास, बहुत टाइम पूछे जाते हैं, यहाँ नहीं अलग अलग एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। सो अब चलते हैं आपके जो है लास्ट टॉपिक पर, ठीक है। अब इसमें देखिए है क्या लास्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसमें मेनली है आपका फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रिफ्ट के लिए कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ पहले कि इसको बोलते हैं पोल फ्लिंग फोर्स। देखिए ये रोटेशन के कारण होता है, दिस पोल फ्लिंग फोर्स जो होता है वो रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण होता है, ठीक है। एंड द टाइडल फोर्स जो होता है दैट इज़ लाइक अट्रैक्शन ऑफ द मून एंड द सन विच डेवलप्स टाइड्स इन द ओशियन, राइट। वो आप समझ जाएंगे जब आप टाइडल फोर्स के बारे में बताऊंगा आपको, मैं बता भी चुका हूँ पहले, ठीक है। वो अट्रैक्शन फोर्स होता है मेनली, टाइडल फोर्स जो होता है, ठीक है। टाइड्स एंड इट इन्हीं कारण होते हैं, ठीक है, ओके। सो मैं बात करता हूँ आपके कन्वेंशनल करंट थ्योरी के बारे में, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल करंट थ्योरी है ये आपके प्रपोज की गई थी आर्थर, अच्छा ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, सॉरी गाइस, राइट, ओके। सो हम कहाँ तक पढ़ चुके थे, वी हैव स्टडीड टिल हियर आई गेस, या वी हैव स्टडीड टिल हियर, या yeah, okay. So see like now we have to study types of plate boundaries, ठीक है। तो देखिए इसमें अब मेनली हम ओवर करने वाले हैं, ख़त्म करने वाले हैं चीज़ों को। देखिए जो टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, कन्वर्जेंट होती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं। आप नाम से ही समझ जाएंगे, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें जो आपका बोथ प्लेट मूव अवे टू जनरेट अ न्यू क्रस्ट, राइट। कोई भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल 2 प्लेट्स हैं आपके हैं, ठीक है, ये दोनों मूव करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में, एक नया चीज़ ओरिजिनेट करेंगे, दैट्स अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है। इसमें क्या है, मिड ओशनिक रीजन्स एसोसिएटेड विद द लार्जली फिशर टाइप इरप्शन ऑफ द वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, ठीक है। सो अब बात करते हैं कन्वर्जेंट की। कन्वर्जेंट में क्या होता है कि दोनों प्लेट्स जो होती हैं वो कोलाइड करती हैं एंड डिस्ट्रक्ट एट अ सबडक्शन जोन। देखिए सबडक्शन जोन क्या होता है, मेनली सबडक्शन जोन जो होता है, फॉर एग्जांपल ये 2 प्लेट्स होती हैं, सपोज करिए मैं आपको 2 प्लेट्स के बारे में बताऊं, ठीक है। सो या ओके, सो समझिए ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। ये 2 प्लेट जो हैं दे आर कमिंग नियर टू ईच अदर, ठीक है। सबडक्शन जोन में क्या होता है, एक की पोजीशन ऊपर होती है, एक की पोजीशन नीचे हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये ऐसे प्लेट्स आपस में टकराने के बाद क्या होगा, ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। अब ये जो होता है ये सबडक्शन जोन होता है प्लेट्स का,
ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़ जाना जो हम बोलते हैं, दैट्स अ सबडक्शन जोन। ठीक है, सो इट इज़ एसोसिएटेड विद द बिल्डिंग ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एक्टिविटी। अब ट्रांसफॉर्म में देखिए क्या होता है, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है, क्रस्ट इज नेदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, टू प्लेट्स स्लाइड हॉरिजेंटली, इट इज एसोसिएटेड विद द अर्थक्वेक, राइट। अब देखिए इसमें क्या है कि जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में पढ़ लें, थोड़ा सा टॉपिक है ये। फोर्सेस फॉर द दैट प्लेट मूवमेंट, दैट्स अ कन्वेंशनल सेल करंट। सो ये देखिए फोर्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो द हीटेड मटेरियल इन द मेंटल अराइजेस, स्प्रेड, कूल्स एंड सिंक। इन तीनों चारों टर्म को आप ध्यान दीजिएगा, अराइजेस, स्प्रेड्स, कूल्स एंड सिंक। ठीक है, दिस साइकिल इज रिपीटेड एंड मूव्स द प्लेट अबव इट। हीट कम्स फ्रॉम द रेडियो एक्टिव मटेरियल एज पर द कन्वेंशनल करंट थ्योरी ऑफ अर्थर होम्स। अर्थर होम की थ्योरी जो ये थी रेडियो एक्टिव मटेरियल के हम पीछे पढ़ के आए थे। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, इस पर रेफरेंसेस कहाँ के लिए गए थे, एनसीईआरटी की जोग्राफी है उससे, एंड सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन जोग्राफी फ्रॉम जेसी लियोन, और जो इमेजेस वगैरह थे वो शोधगंगा से ली गई थी, राइट। तो फ्रेंड देखिए ये आपका पहला चैप्टर था, होप आपको पसंद आया होगा, एंड ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा चीज़ों को, और ऑल द बेस्ट, गुड लक, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, आपके ऊपर है, यू कैन जस्ट लाइक इट। थैंक यू सो मच।